جو دین کی پابندی کرے گا، ہماری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، ایسے ہر شخص کے لیے ہم ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راہ نجات پیدا کریں گے اور اسے ایسی روزی دیں گے جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی، کیونکہ اللہ ہی وہ ہے جو اپنے ہر کام کو آخری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ اس نے ہر چیز کے لیے ایک مدت اور ایک مقدار اور ایک جگہ اور ایک زمانہ معین کیا۔ میں نے آپ کے سامنے اب تک جتنی باتیں کہی ہیں ان کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، دین کا مکمل پابند ہونا، اگر کہ آج زمانے میں اس کا رواج نہیں ہے لیکن یہ چیز بہرحال ضروری ہے، بہرحال لازمی۔ زمانہ ہمیشہ اس راستے پر بڑھتا رہے گا جو راستہ خدا کی طرف نہیں جاتا، لیکن ہم جب مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زمانے کی ہر چیز کو اختیار نہیں کریں بلکہ احکام خدا کے مطابق تقویٰ اختیار کریں۔ آج شیطان نے سائنس کے ذریعے ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں کہ پہلے ایک آدمی کی زندگی تباہ و برباد ہوتی تھی، اب پورے خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہوتے ہیں۔
ہماری سوسائٹی میں جب تباہ اور برباد کا لفظ بولا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مالی اعتبار سے تباہ ہو گئے. نہیں، سب سے بڑی تباہی ہے کریکٹر کا برباد ہو جانا، ایمان کا برباد ہو جانا، شرافت کا برباد ہو جانا. میں آپ کے سامنے زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی، ریڈیو اور دوسرے کیسٹ، ان کے ذریعے شیطان نے ہمارے گھروں میں اپنے اڈے جما لیے. اتنا تو میں نہیں جانتا ہوں جتنا دیکھنے والے جان سکتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں کہ آج زندگیاں معطل بھی ہو جاتی ہیں اور زندگیاں برباد بھی ہو جاتی ہیں ان چیزوں کے ذریعے. پہلے آدمی سنیما گھر جاتا تھا، وہاں جا کے فلم دیکھتا تھا. شیطان نے خدمت کی کہ ہمارے پیارے تم کو زحمت ہوتی ہے، کہاں تک جاؤ گے؟ ہم گھر تک فلم پہنچائے دیتے ہیں. تو میں ایسے خاندانوں سے باخبر ہوں جو ایک ایک رات میں ایک ایک دن میں 4 فلمیں ایک ساتھ دیکھتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں، دین کی بات تو بعد میں ہوگی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جس گھر میں 12 گھنٹے فلم چلتی رہے گی اور پورا خاندان 12 گھنٹے فلم دیکھتا رہے گا، اس کے آثار پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ان کی زندگی کے اور کام برباد ہوں گے یا نہیں برباد ہوں گے؟ اور پھر میں آپ کے سامنے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس پر اگر میری بہنیں توجہ دیں تو شیطان کی یہ نوبتیں دور ہو سکتی ہیں کہ شراب کا نشہ تو مشہور ہے، سب جانتے ہیں. شراب کو مذہب نے حرام اسی لیے قرار دیا ہے کہ شراب کے نشے کے طاری ہونے کے بعد آدمی کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شراب کو مذہب نے حرام اسی لیے کیا ہے کہ اس کے نشے کے پیدا ہونے کے بعد آدمی کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور وہ نہیں جانتا ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات ماں سے کہنے کی ہے یا بیوی سے کہنے کی ہے، اور جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنے نوکر سے کہنے کی ہے یا خدا سے کہنے کی. لیکن میں آپ کی خدمت میں اس لیے کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فلموں کے ذریعے اور کسی قسم کی دوسری چیزوں کے ذریعے ذہن پر جو خیالات کا جماؤ پیدا ہوتا ہے وہ انسان کی جسمانی انرجی کو بھی برباد کر دیتا ہے، خاندانوں میں درازیں بھی پیدا کر دیتا ہے اور دین اور ایمان کا نیلام بھی کرا دیتا ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے بچے آگ میں جائیں اور آگ میں کھیلیں تو پھر ہم کو اپنے گھروں میں سے سارے پروگرام بند کر دینا چاہیے. ایک صلوات بھیجیے محمد. ورنہ سال کے سال فلم دیکھنا، سال کے سال ان سارے ہنگاموں میں زندگی کو رکھنا جن سے مذہب نے منع کیا ہے، اور 10 دن کے لیے حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اس سے ہم ویسا فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے جیسا فائدہ حاصل کرنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں گزارش جو پیش کر رہا تھا اس کی طرف پھر آپ متوجہ ہو کہ یہ تو میں نے خاص طور سے ٹی وی، وی سی آر، ریڈیو، ان چیزوں کی برائیوں طرف آپ کو متوجہ کیا، لیکن مذہب ہم سے یہی کہتا ہے کہ تم کو پوری زندگی یوں بسر کرنا ہے کہ جس سے خدا تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دے دے اس کو بجا لاؤ. یہی تقویٰ ہے. میں نے آپ کے سامنے تقوی کے معنی مسلسل بیان کیے ہیں کہ معصومین نے کہا ہے تقویٰ ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا.
میں نے آپ کے سامنے پچھلی تقریبوں میں یہ بھی گزارش کی کہ مذہب سے قریب کرنے کے 3 ذریعے ہیں، ایک محبت، ایک خوف، ایک شوق۔ آج مجھے آپ کے سامنے یہی تذکرہ کرنا ہے کہ جس مذہب کو بھیجنے والا خدا ہے، وہ خدا جو خدا رحمان اور رحیم ہے، میں کسی مجلس میں یہیں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں، پھر یاد دلا کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا بند عالم کی رحمت کے 2 طریقے ہیں، محبت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک اس کی رحمت وہ ہے جو عام ہے سارے مخلوقات کے لیے، چاہے اس میں نمرود ہو چاہے جناب موسیٰ۔ اسی لیے جب کبھی جناب موسیٰ نے کمزور عقل انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ خدا کون ہے، روزی دینے والا خدا ہے یا روزی پانے والا فرعون خدا ہے، یہ درخواست پیش کی تھی کہ پالنے والے کچھ دن کے لیے فرعون کی روزی کو بند کر دے تاکہ دنیا کو معلوم تو ہو جائے کہ روزی دینے والا کون ہے اور اس سے روزی پا کے خدائی کا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ لیکن اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ گمراہ ہے، مگر میں نے اپنے لیے رب العالمین ہونے کا اعلان کیا ہے، لہٰذا جب میں سب کا رب ہوں، سارے عالموں کا رب ہوں، تو دوست دشمن کا فرق نہیں کر سکتا ہوں، فرعون کی روزی بند نہیں۔ یہ عام نعمت ہے، یہ عام رحمت۔ لیکن اب میں اپنے محترم سننے والوں سے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے خاص طور سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی اصلی محبت، اللہ کی اصلی رحمت، اللہ کی واقعی محبت، اللہ کی واقعی رحمت عام نہیں ہے، خاص ہے صرف مومنین کی۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی گھر میں 2 لڑکے رہتے ہیں، ایک نافرمان لڑکا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا لڑکا، اور ایک فرمانبردار لڑکا جس سے ماں باپ کو کچھ کہنا نہیں پڑتا ہے بلکہ وہ خود فکر میں رہتا ہے کہ کیا کام ہم کریں جس سے ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو دونوں بچے ایک ہی گھر میں ہیں، ایک ہی ماں باپ ہیں۔ تو جہاں تک گھر میں جگہ دینے کا سوال ہے، جہاں تک کھانا کھلانے کا سوال ہے، جہاں تک کپڑا پہنانے کا سوال ہے، ماں باپ دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے ہیں۔ لیکن واقعی ماں باپ کی محبت نافرمان بچے کے لیے نہیں ہے بلکہ اصلی محبت اس کے لیے ہے جو فرمانبردار ہے۔ اگر آپ نے میری اس مثال کو محسوس فرما لیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا میں وہ کافروں کو، سرکشوں کو، بغاوت کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو، دین کی پابندی نہ کرنے والوں کو، گناہ پر گناہ کرنے والوں کو اگر روزی دے دیتا ہے تو یہ وہی محبت ہے جو ماں باپ اپنے بدترین نالائق لڑکے کو گھر سے نکالتے نہیں ہے بلکہ رکھے دیتے ہیں۔ جہاں وہ جانوروں کو کھانا دیتے ہیں، جہاں وہ نوکروں کو کھانا دیتے ہیں، وہاں وہ لڑکے کو بھی کھانا دے دیتے ہیں۔ تو بس یہ چیز تو اور ہے، لیکن پروردگار عالم نے مخصوص محبت کے لیے انتخاب کیا ہے بندے مومن کا۔ سلوات بھیجیے محمد سلوات اور بھیجیے محمد راج اور اس مرحلے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں ایک ذرا سی آپ کی زیادہ توجہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کی ساری نعمتوں اور رحمتوں کا رخ ان کے لیے ہے جو بندے مومن۔ میں یہاں پر لفظ مسلمان بھی استعمال نہیں کر رہا، اس لیے کہ تاریخ اور قرآن و تفسیر نے بتایا کہ مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ کے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، اور ایک وہ مسلمان ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ کے آخرت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ مومن کون ہے؟ خدا کا ماننے والا، سارے نبیوں کا ماننے والا، حضور کو آخری نبی ماننے والا، حضور کے بعد امام اول خلیفہ بلا فصل مولا کائنات امیر المومنین علی مولا کائنات کے بعد بقیہ سارے 11 اماموں کا ماننے والا۔ اور مختصر یہ اسے میں نے آپ کے سامنے ایک دن کہا تھا
कि जो कुछ पैगंबर दीन और शरीयत लेकर के आए हैं उस दीन और शरीयत की हर बात को बगैर झिझक के मानने वाला वो मोमिन होता है। आपने मोमिन की तारीफ सुन ली है। अब मैं फिर अपने फिक्रे को दोहराना चाहता हूँ। अल्लाह की मोहब्बत, वाकई मोहब्बत, असली मोहब्बत, खुसूसी मोहब्बत, उसने सारी की सारी मोहब्बतों का ज़ख़ीरा अपने मोमिन बंदों के लिए रखा है। मैं उसमें से चंद बातों का तज़किरा करना चाहता हूँ। अगर कोई जरूरी तज़किरे रह जाएंगे तो कल पेश कर दूंगा इंशाअल्लाह। आज मैं आपके सामने सबसे पहली गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस बात को महसूस करें कि मोमिन बंदे के लिए परवरदिगार आलम की मोहब्बतों में से, रहमतों में से पहली मोहब्बत और पहली रहमत जिसका मैं तज़किरा करना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात हम करने जा रहा हूँ, ज़ाया न होने दीजिएगा। वो ये कि खुदा उसकी फलाह और बहबूद और भलाई के लिए फिक्रमंद रहता। शायद मैंने बात कही और मैं अपनी बात को दिलों में जगह नहीं दिला सका, लेकिन आप पहचाने हैं कि आप किसी बच्चे को मिसाल देना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को आप अरबी की तालीम दिलाना चाहते हैं, उसे आप लखनऊ ले आते हैं, मेरे हवाले कर देते हैं और ये कहते हैं कि हम आपसे ये चाहते हैं कि आप इसकी निगरानी करते रहें। और जब आपको ये मालूम हो कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि वो बच्चा बेहतरीन आलिम दीन बन जाए, बेहतरीन मुकर्रिर बन जाए, तो माँ बाप को इत्मीनान होता है कि जब मौलवी साहब फिक्रमंद है उसके बारे में तो फिर हमको फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है। अब आप पहचानिए मेरी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है, किसी की क्या हैसियत है। वो जो रब्बुल आलमीन है, वो जो रहमान है, वो जो रहीम है, वो जो सुल्तानुल सलासीन है, जो सारी कुदरतों का मालिक है, सारे इख्तियारात का मालिक है, हर चीज का जानने वाला है, अगर उसने ये तय कर लिया है कि मैं खुदा हो के अपने मोमिन बंदे की भलाई की फिक्र में रहूंगा, तो पहचानिए इससे बड़ी और कौन सी नेमत और राहत हो। बंदे मोमिन वो बंदा है जिसकी भलाई के लिए खुदा फिक्र करता है। मैं जुमले को कह के आगे बढ़ जाता और गिनती गिना के आगे बढ़ जाता, मगर एक बात पहचान लीजिएगा, हर मोहब्बत करने वाला अपने उसूल, अपने मिजाज, अपने अंदाज के मुताबिक मोहब्बत करेगा, वो हर एक के अंदाज के मुताबिक मोहब्बत नहीं करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में मोहब्बत आम है, मगर मोहब्बत मिजाज के मुताबिक ही हो सकती है, मिजाज के अलग नहीं हो सकती है। मैं अगर किसी आदमी से मोहब्बत करूंगा तो मेरी सबसे पहली फिक्र होगी ये नमाजी है या नहीं है, ये गाड़ी रखता है या नहीं रखता है, इसके घर में पर्दा है या नहीं है, इस पर हज वाजिब है तो हज अदा करने गया है या नहीं गया है, ये अपने माल में से ज़कात का खुर्स निकालता है या नहीं निकालता है। मेरी मोहब्बत के अंदाज यही हो सकते हैं। मेरी मोहब्बत का अंदाज ये नहीं हो सकता है कि सनीमा देखा है कि नहीं देखा है, फलां नई फिल्म आई है वहां देखने गए हैं कि नहीं गए हैं, सर्कस आया है वहां पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। बस याद रखिएगा, बाजार का आदमी वैसी मोहब्बत करेगा जैसे बाजार वाले करते हैं, मिंबर का आदमी वैसी मोहब्बत करेगा जैसे मिंबर वाला मोहब्बत करता है, मस्जिद वाला आदमी वैसी मोहब्बत करेगा जैसे मस्जिद वाले आदमी की मोहब्बत होती है। अगर आपने इन मिसालों को समझ लिया है तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा वैसी मोहब्बत करेगा जैसी मोहब्बत उसकी शान खुदाई के मुताबिक होगी। करवा दीजिए एक दुरूद और भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं फिर चाहूंगा कि मेरे सारे बयान के बाद भी हर सुनने वाले के ज़हन में ये बात बाकी रहे कि बंदे मोमिन वो बंदा है जिसकी भलाई के लिए खुदा फिक्र करता है, फिक्रमंद रहता है। खुदा की कसम, इस जुमले में जो एक अजीम समंदर मोहब्बत और रहमत का पिन्हा है, उसका अंदाजा लगाने के लिए खाली ये जुमला काफी नहीं है। आपको अकेले में बैठ के भी सोचना पड़ेगा कि वो कैसा इंसान होगा जिसकी भलाई की फिक्र खुदा करेगा। अब मैं आपको अंदाज सुनाने के लिए एक जुमला करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने बंदे मोमिन से वादा किया है, तुम दुआ करो, तुम मुझसे मांगो जो मांगना चाहते हो मांगो। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि मैं आपसे दो तीन बातें छोटी छोटी से कह दूं। इस दुनिया में बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे इंसान का मिजाज ये है कि सबसे ज्यादा वही पसंद आता है जो नहीं मानता। मिजाज इंसानी पर सवाल बार होता है। इसीलिए मैं आपको एक हदीस याद दिलाऊं।
کہ سوال کرنے والا بہرحال اپنی برمدی سے نیچے آ جاتا ہے جب کوئی سوال کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں آدمی کو بہرحال نیچا کر دیتی ہیں، جھکا دیتی ہیں۔ بیٹی اپنے باپ کو جھکا دیتی ہے داماد کے سامنے، چاہے بیٹی مریم جیسی کیوں نہ۔ قرض آدمی کو جھکا دیتا ہے اس آدمی کے سامنے جس سے وہ قرض لیتا ہے، چاہے 1 درہمی کا قرض کیوں نہ۔ اور سوال آدمی کو جھکا دیتا ہے اس کے سامنے جس سے وہ سوال کر رہا ہے، چاہے وہ سوال ایک جو کا۔ یہ تو حدیث درمیان میں یاد آ گئی، مگر جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ انسانی مزاج کی کیفیت یہ ہے کہ جو نہیں مانگتا ہے وہ سر آنکھوں پر، اور جو مانگتا ہے وہ سر سے آنکھوں پر آتا ہے، آنکھوں سے منہ تک آتا ہے، اور پھر ادھر سے اس اچھے انسان کے قدموں تک پہنچتا ہے۔ میں آپ جیسے سمجھدار بندے کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن بچوں کے ذہن کو بھی ساتھ رکھنے کے لیے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، بڑے سے بڑے چاہنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ ماں باپ سکتے ہیں۔ ماں باپ زیادہ چاہنے والا تو کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنی اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ہی اس کی اداؤں میں غصہ بھی آنے لگتا ہے، لیکن بچے کی بچپنے کی ہر ادا پر تو پیار ہی آتا ہے۔ ماں باپ زیادہ چاہنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ماں باپ زیادہ محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور بچہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے پیار اور محبت ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے اس رات سے بھی واقف ہیں کہ ماں باپ ہمیشہ اپنے سب سے چھوٹے بچے سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ جتنا سن بڑھے گا محبت کم ہو جائے گی، جتنا سن گھٹے گا اتنی محبت بڑھ جائے گی۔ لیکن چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی بات بار بار پوچھتا ہے ہے 3ری 4تھی مرتبہ کے بعد ماں باپ کی چلاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ تم کو بتائیں؟ اب آپ پہچانیے جس بچے کی توتلی زبان پر مانتا کو پیار آتا ہے، وہ بھی اگر 4-6 مرتبہ سوال کرتا ہے تو طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کسی اور کے پاس مانگنے کے لیے گئے، ان کا مولوی صاحب تو کبھی نہیں آیا کرتے تھے، آج پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ یہ لفظ ہی پہلی مرتبہ آئے، یہ بتاتا ہے کہ پہلی مرتبہ آنے کی عزت اور ہے، دوسری مرتبہ آنے کی عزت نہیں رہے گی۔ لہٰذا جو مانگے وہ دے دینا چاہیے۔ چندہ مانگتے ہیں تو دل مکاتب کے لیے، محمد مانگتے دے دینا چاہیے، لیکن جب دیکھا ہر سال آتے ہیں تو جیسے ہی آتے دیکھا کرنے کا معلوم ہوتا ہے محرم آ گیا، میراث پہچانے۔ اور اگر کبھی سال میں ہم 2 مرتبہ چلے گئے تو کہاں آیا کرتے تھے، اور ابھی آپ 1 مہینہ پہلے ہی تو آ چکے۔ یعنی عام انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر سوال بار بار کیا جاتا ہے تو آخر میں وہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کی مزاج پر بات نہ ہو۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک فقیر مانگنے نکلا، ایک دروازے پر گیا، اس نے 1 روپیہ دے دیا۔ 10 بجے رات کو پھر اس کے دروازے پر آ گیا تو گھر کے مالک نے کہا کہ بابا معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا حافظہ بہت کمزور ہے، آج ہی تو تم سویرے 1 روپیہ لے گئے ہو اور پھر ابھی دن بھی نہیں بدلا ہے، شام کو آ گئے ہو۔ وہ فقیر بھی بہت سمجھدار تھا، تجربے کار، اس نے کہا ہم کو بالکل یاد ہے کہ سویرے آپ سے روپیہ لے رہے ہیں، مگر آئے اس لیے ہے کہ دن بھر سب جگہ مانگا، آپ کے علاوہ کسی نے دیا ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا ایک ہاتھی دینے والے ہیں، لہٰذا دوبارہ پھر آپ کے یہاں۔ تو آپ نفسیات پہچانے کہ دنیا میں سوال کرنے والا بار بن جاتا ہے جس سے وہ سوال کرتا ہے، مگر ہم سنتوں کو سجدے میں سر جھکا دینا چاہیے اس خدا کے سامنے جو یہ کہتا ہے جب دنیا مانگنے پر چڑھ جاتی ہے تو میں تم سے اس پر ناراض ہوتا ہوں کہ تم کیوں نہیں مانگتے۔ بندے اور خدا کا فرق و فاصلہ پہچانیے۔ ہم مانگنے پر چڑھ جاتے ہیں، وہ ناراض ہوتا ہے تو مانگتے کیوں نہیں ہو۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں ہمیں روزی دے دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے، ہمیں دین کی پابندی کی توفیق دے دے، ہم کو اولاد دے دے، ہم کو عزت دے دے، ہم کو صحت دے دے، ہم کو فلاں چیز دے دے۔ وہ تو خود جانتا ہے، وہ دے سکتا ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ کہا میں اس لیے تم سے دعا کے لیے نہیں کہتا ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورتیں نہیں معلوم ہیں، نہیں مجھے تمہاری ضرورتیں تو معلوم ہے، لیکن میں تمہارے اندر مزاج بندگی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیجے تو اب میں آپ کی خدمت میں اس بات کے تذکرے
कि परवरदिगार आलम अपने बंदे मोमिन के लिए कितना मेहरबान है, ये कहना चाहता हूँ कि उसने कहा है कि तुम दुआ मांगो, तुम दुआ मांगो। कैद नहीं लगाई है दिन में एक दुआ मांगना, कोई कैद नहीं लगाई, न कोई लिमिट रखी है कि इसके बाद दुआ न मांगना। कहा नहीं, तुम जितनी दुआएं मांग सकते हो मांगो। देखो ये हद आ सकती है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं सुनते सुनते नहीं थकूंगा। लोगों से कहने में दिक्कत होती है, इस वक्त सो रहे कैसे कहा जाए। अल्लाह ने कहा तुम सोते हो, मैं तो सोता ही नहीं हूँ। खुदा की सिफती वही है जिसको न नींद आती है न ऊँघ आती है। तो जब तुम जाग जाओ तब तो खुदा से मांगो, रात को मांगो, सुबह को मांगो, शाम को मांगो, जो चाहो मांगो। बंदे मोमिन से उसने कहा जितनी दुआएं तुम कर सकते हो करो, मैंने भी अगला जिक्र नहीं कहा है। और उसके बाद उसने कुरान मजीद में वादा किया, हम वादा करते हैं तुम दुआ मांगोगे, हम तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेंगे। इस मसले तक मैं जानबूझ के लाया हूँ इसलिए कि यहाँ दाहिने बाएं जो खड़ और गहराइयाँ हैं, जहाँ आदमी खिदर के गिर जाता है ईमान से, उनसे बाखबर करना मेरा मकसद, मेरे मद्देनजर पेश नजर है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद में उसने कहा है मैं ऐलान करता हूँ कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कभी किसी आदमी को शुबा नहीं होना चाहिए कि हम दुआ करेंगे वो दुआ कबूल नहीं करेगा। मगर पहली बात याद रखिएगा, ये वादा, ये ऐलान बंदे मोमिन के लिए है, गैर मोमिन के लिए नहीं। ये सारी मेहरबानियां जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इनका ताल्लुक बंदे मोमिन से है, बंदे गैर मोमिन से नहीं है। गैर मोमिन से तो वैसे ही सुलूक है जैसे नालायक औलाद को घर में जगह दे दी जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। सारी मोहब्बतें, फिक्रमंदियां किसके लिए हैं? मोमिन बंदे के लिए हैं। मैं आपकी खिदमत में आगे बढ़ने से पहले एक लफ्ज कहना चाहता हूँ, दुनिया में हर एक का ऐलान झूठा हो सकता है, मगर खुदावंद आलम के लिए ये तसव्वुर करना ही गलत है कि वो ऐलान करेगा और माज़अल्लाह ऐलान पर अमल नहीं करेगा। नहीं, मैं सिर्फ अकीदे के तौर पर आपसे बात मनवाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि अकीदे की जो दलील है उसको सुना के मनवाना चाहता हूँ। किसी का ऐलान झूठा होता है तो क्यों होता है पहचानिए। किसी का ऐलान झूठा होता है तो क्यों होता है, उसके असबाब पहचानिए। या तो वो कोई चीज हासिल करना चाहता है जिसके लिए वो ऐलान करता है, मगर वो हासिल नहीं कर पाता है, इसलिए कि उसके पास या इल्म कम होता है या ताकत कम होती है, ज्यादा ऐलान झूठा हो जाता है। लेकिन खुदा को अवलन तो कुछ लेना ही नहीं है, उसे तो अता ही अता करना है, देना ही देना है, कुछ लेना नहीं है। और दूसरे ये कि वो जानता भी सब कुछ है, उसके पास कुदरत भी पूरी है, ज्यादा उसको किसी गलत वादे के लिए गलत वादे की जरूरत ही नहीं है कि वो गलत ऐलान करे। खुदा को अगर हमने कादिर माना, खुदा को अगर हमने आलिम माना, तो फिर हमको ये मानना पड़ेगा कि जो कादिर है, जो आलिम है, वो सच्चा खुद ब खुद होगा, उसे झूठ की जरूरत ही नहीं। और फिर जिसको कुछ चाहिए, जिसको कुछ मांगना हो, हासिल करना हो, वो झूठ के लिए मोहताज हो सकता है। जो सबको बख्शने वाला है और इतना बख्शने वाला है कि मांगने वाले खत्म हो जाए, उनकी मांग खत्म हो जाए, मगर उसके खजाने में कमी न पैदा हो, उसको कोई जरूरत ही नहीं है बयान की। तो ये सिर्फ अकीदा नहीं है, बल्कि अकीदे के पीछे वो मजबूत दलीलें हैं जिनकी बिना पर हमको मानना ही पड़ेगा कि खुदा का हर वादा सच्चा है। एक सलवात तो भेजे मोहम्मद अगर आपने मेरी इन बातों पर तवज्जो फरमाई है तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि बंदे मोमिन से खुदा की जो बेशुमार मोहब्बतें हैं, उनमें से एक मोहब्बत ये है कि वो बंदे मोमिन की भलाई की फिक्र में रहता है। और उसमें से एक बात ये है कि उसने कहा मांगो जितना तुम मांग सकते हो, और मेरे इस ऐलान को सुन के मांगो कि तुम दुआ मांगोगे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह का ऐलान सच्चा है। मैं इसके बाद आपके चेहरे पर जो मैं परेशानी देख रहा हूँ, उस परेशानी को मैंने पैदा ही करना चाहा है कि उसके बाद ज़हन में खुद ब खुद ये ख्याल पैदा हो रहा है। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है दुआ मांगो, हम दुआ कबूल करेंगे। और मौलवी साहब भी कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है, कुरान में भी तज़किरा है, और अल्लाह के कमाल का तकादा भी यही कि उसके बाद ये सच्चे हो। मगर हमारे तजर्बे में है कि दुआ मांगते हैं और दुआ कबूल नहीं होती। मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं इस कमजोर रास्ते पर नहीं जाऊंगा कि मैं जवाब में ये कह दूं कि जिसकी दुआ कबूल नहीं होती है वो इसलिए कबूल नहीं होती है कि वो मोमिन नहीं है, ताकि मेयार बन जाए जिसकी दुआ कबूल हो जाए मोमिन हो जाए, और जिसकी दुआ कबूल ना हो वो गैर मोमिन हो जाए। नहीं, बंदे तो ऐसे रास्ते बहुत जल्दी अख्तियार कर लेते हैं।
और याद रखिएगा, झूठ और बातिल के रखे यहाँ ऐसे हथकंडे हमेशा पैदा होते हैं। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ तस्करा करना चाहता हूँ। ऐसे में ऐसे हजारों मिसालों से आपका खबर है। कोई आदमी कोई कर्तव्य दिखाता है और कर्तव्य दिखा के कहता है कि मुझे मानो कि मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ, अवतार हुए जमाने में बहुत मिलते हैं और बांधने वाले हमसे ज्यादा जानते हैं कि अवतार कितने उतर पड़े हैं, साई कितने उतर पड़े हैं, बलाएं कितनी नाजिल हो गई हैं और उन बलाओं के पास रातों को छुप छुप के हम जाते कितनी मरतबा है, खुद लिखने कितनी मरतबा है, हमारा आदमी कितनी मरतबा जाता है। उन सब बातों से आप मुझसे ज्यादा बाखबर है। क्यों? इसलिए कि जो ज्यादा आरज़ुओं में मुब्तला होता है वो उतना ही ज्यादा परेशान होता है और जितना ज्यादा परेशान होता है उतना ही हर कमजोर के पास पहुंचता है मदद के लिए। लेकिन मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूंगा कि मैंने इन कर्तव्य वालों के आखिरी दाव को भी देखा है। उनका देखो, हम हाथ खिलाएंगे और तुमको दीवार पर एक तस्वीर नजर आएगी और वो तस्वीर तुमको बताएगी कि हम खुदा के भेजे हुए अवतार हैं, इस दुनिया के मामूली इंसान नहीं है। एक आदमी आंखें खोले फाड़े हुए देखता रहा, उसे तस्वीर नहीं दिखाई दी। उसने कहा हमें तो नहीं दिखाई। तो जो पहले से उनके समझदार चेले मौजूद और उसके बाद फरमाया, मगर एक बात याद रखना, तुम मांगोगे अपनी अक्ल के मुताबिक, तुम मांगोगे अपने इल्म के हिसाब से, तुम मांगोगे अपने अंदाज के मुताबिक। और अब कारामद होगा उस जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि खुदा अपने मोमिन बंदे से ये मोहब्बत करता है कि वो उसकी भलाई की फिक्र में रहता है। अगर ये फिक्र आपको याद है तो मेरे फिक्र को सुनिए कि बंदे मोमिन की दुआ जरूर कबूल करेगा। लेकिन अगर मोमिन ने वो मांगा है जो खुदा के इल्म के मुताबिक उस बंदे मोमिन के लिए मुफीद है तो वही देगा जो बंदे मोमिन ने मांगा है, वरना वो देगा जिसको खुदा बेहतर समझेगा उसके लिए। एक सलवात तो भेजे बुजुर्ग मेरी बातों में तवज्जो हो गए होंगे, लेकिन मैं अपनी बेटियों और बच्चों को भी साथ लेना चाहता हूँ और अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि जरा वो इन मसाइल को ज्यादा तवज्जो के साथ सुन लें। इसलिए कि तजर्बा यही है कि जब गलत रास्ते घरों में पैदा होते हैं तो सबसे पहले मुतासिर होने वाली औरतें होती हैं और इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है। इसलिए हम नहीं कहते हैं कि हम औरत नहीं है, ज्यादा औरतों को हम कह रहे हैं। नहीं, तारीख भी यही बताती है कि शैतान ने आदम तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की थी, जरिया बनाया था तो अम्मा हव्वा ही को जरिया बनाया था। ज्यादा हमेशा जब वो घरों में घुसना चाहता है तो औरतों को पहले जरिया बनाता है, जवानों को बाद में जरिया बनाता है, मालदारों को जरिया बनाता है। और जरिया बनाने की जरूरत तो यह है कि मेरे जैसे मिंबर पर आने वालों को भी छोड़ता नहीं है जरिया बनाने में। अब कोई जरिया बने या न बने ये उसके मुकद्दर की बात है, वो कोशिश करता है। ये हमारा फरीदा है कि हम जरिया बन न बने और उसके कब्जे में न आने पाए। एक सलवात तो भेजे मोहम्मद राजा। तो अब मैं आपके सामने जो गुजारिश को पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि रोज हम आप देखते हैं कि एक मरीज डॉक्टर से अपनी ख्वाहिश बयान करता है, डॉक्टर साहब प्यास बहुत लगती है पानी से। एक बच्चा अपनी माँ से, एक पढ़ने वाला शागिर्द अपने उस्ताद से कि मरीज जब डॉक्टर से कुछ मांगता है तो जहां तक मरीज की अक्ल है अपने लिए बिल्कुल सही चीज समझ के मांगता है। वैसे ही बच्चा जब अपने माँ बाप से कुछ मांगता है तो उसके ख्याल में उस चीज के मांगने में कोई गलती नहीं होती। लेकिन हम आप रात दिन इस बात से बाखबर है कि मरीज मांगता है अपनी राय से और डॉक्टर देता है अपनी राय से। बच्चा मांगता है अपने बचपने के मुताबिक, माँ बाप उसे देते हैं अपने तजर्बे के मुताबिक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो डॉक्टर से कहते हैं वो कहता है हाँ खाइए, और कभी कहता है इसके बजाय आप दूसरी चीज इस्तेमाल करें। ऐसे कभी बच्चे अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं, माँ बाप वही दे देते हैं जो बच्चे मांगते हैं, और कभी उसके बजाय। तो मैं मसले को आसानी के साथ करने के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस मसले पर आकर ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन दो बात
बातें आपके सामने कहना जरूरी महसूस करता हूँ। अगर नहीं कहूँगा तो इस मसले में मुझे बाकी रह जाएगी। पहली बात ये कहना चाहता हूँ, उसे आप तवज्जो के साथ सुने कि खुद हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत तजुर्बे हैं कि जिस चीज के लिए हम बेचैन होते हैं, मचल जाते हैं, न मिलने पे बेइंतहा हमारे जिंदगी के तजुर्बात जो हमारे सामने मौजूद है, उनके सहारे ये कहना चाहता हूँ। जिंदगी के तजुर्बात जो हमारे सामने मौजूद है, उनकी रोशनी में कहना चाहता हूँ कि हम में से अक्सर और बेशतर आदमी राय अपनी बदला करते हैं कि कल जिसको हमने मुफीद समझा था, आज वो हमारे लिए मुज़िर साबित हो रही है, और कल जिसको हम मुज़िर समझ रहे थे वो हमारे लिए मुफीद साबित हो रही है। और सिर्फ आपके मुंह का मजा बदलने के लिए एक ही बात इस सिलसिले की कहना चाहता हूँ कि जल्दी में जो बहुत सी शादियां हो जाया करती हैं, कुछ दिन के बाद जब वो जल्दी का नशा उतर जाता है तो अक्सर यही राय होती है कि न की होती तो बेहतर था, करके जिंदगी भर के लिए मुसीबत में पड़ गए। तो मैं आपके सामने ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिंदगी में रोज हमारे सामने आता रहता है। आज हमारी राय में ये काम इतना मुफीद है, इतना जरूरी है कि हो ही जाना चाहिए, लेकिन 4 दिन के बाद, 4 महीने के बाद, 4 साल के बाद हम सोचते हैं हमारा फैसला बहुत गलत फैसला था। तो पहचानिए, हम तो आज ही को देख सकते हैं, कल नहीं देख सकते हैं, लेकिन जिसकी निगाह में जमाना कोई हकीकत नहीं है, वो जमाने से पहले भी जानता है, जमाने के बाद भी जानता है, और जमाने को भी जानता है। वो जब फैसला करेगा तो मेरे महदूद इल्म की बिना पर नहीं, बल्कि अपने गैर महदूद इल्म। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जो इससे कई ज्यादा अहमियत रखती है, और अगर मैं न करना है उसकी तरफ मुतवज्जे न करूंगा तो जहन में गोशा मसले के सिलसिले में खाली रहेगा। वो ये कि हम और आप जब दुआ मांगते हैं और खुदा से कोई चीज मांगते हैं तो तवज्जो फरमाइएगा इस बात पर, तो हमारे सामने बस दुनिया की जिंदगी होती है, उसकी आगे का कोई तस्वर हमारे सामने नहीं होता है। मगर खुदा जो रहमान है, रहीम है, जो अपने बंदे मोमिन की भलाई के लिए फिक्रमंद है, उसको तो मालूम है ये जिंदगी थोड़े दिन की है, वो जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए है। यहाँ जो मिलेगा वो भी छूट जाने वाला है, वहाँ जो मिलेगा वो हमेशा रह जाने वाला है। लिहाजा हमारी मांगे, हमारी दुआएं, हमारे सवालात वो होते हैं जो सिर्फ जिंदगी की सड़क तक वाबस्ता होते हैं, और उसके फैसले वो होते हैं जो हमारे लिए आखिरत और दुनिया दोनों को देख कर फैसला करता है। मैं इस बात को आखिरी मंजिल में दिलों में जगह दिलाने के लिए एक वाकया सुना दो, जो चीजें रह गई हैं वो इंशाअल्लाह कल मैं आपके सामने पेश करूंगा। हुजूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा के पास एक साहबी बैठे रहा करते थे, बड़े नमाजी, बड़े मुत्तकी, हर जमात में शिरकत करने वाले, भले वक्त नमाज पढ़ने वाले, वाजिबात से ज्यादा दीन के मुस्तहबात की अदा करते, लेकिन तकवा उनके पास पूरा था, दुनिया उनके पास बहुत थोड़ी थी। गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे थे, मुफलिसी की जिंदगी बसर कर रहे थे, और आलम भाई कि आज खाया तो कल नहीं, और कल खा लिया तो 2 दिन नहीं, और सुबह मिला तो शाम नहीं, और खाने को है तो पहनने को नहीं, और पहनने को है तो रहने को नहीं। इंतहाई मुफलिसी की जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन तकवा पूरा था, दीन की पाबंदी पूरी। एक दिन उन्होंने हुजूर से अपना हाल बयान किया, तो नबी ने कहा ऐसा करो, ये 2 दिरहम मुझसे ले लो और इससे कुछ खरीद लाओ, जो लाओ उसे हमारे तिजारत करार दो, और व्यापार और कारोबार तिजारत शुरू कर दो, अल्लाह बरकत दे। पैगंबर ने 2 दिरहम दे दिया। बड़ा मशहूर वाकया है, आप में से अक्सर हज़ार का सुना ही हुआ होगा, लेकिन मैं अपने बच्चों और बेटियों और खास तौर से अपनी बहनों के जहनों में अपने ख्यालात को मुस्तहकम करने के लिए इस वाक़े को मुफीद समझ कर बयान करना चाहता हूँ। तवज्जो के साथ समाज फरमाएं, सुने। बरकत शुरू हो गई, कारोबार बढ़ने लगा। तो पहले ये होता था, घंटे 2 घंटे में माल पी गया, फिर मस्जिद में आ गया। फिर ये हुआ कि सुबह से शाम तक माल बिकता रहा, माल ज्यादा हो गया था, व्यापार भी बढ़ गया था, ग्राहक भी बढ़ गए। तो ये होता था कि बाहरी दिन गुजर जाता था मस्जिद के, लेकिन जैसे ही अजान होती थी वैसे दौड़ के कारोबार छोड़ के, दुकान छोड़ के, माल छोड़ के आ जाते।
फिर जरा और कारोबार बढ़ा तो मस्जिद के दरवाजे पर उन्होंने दुकान बनाई। दीन भी वही, दुनिया भी वही। अब जो कारोबार और बढ़ा तो अजान खत्म होने के बाद पहुंची, और कारोबार आगे बढ़ा तो नमाज शुरू हो गई तब पहुंची। और फिर ऐसी भी मंजिलें हो गई कि हुजूर ने नमाज पढ़ा दी थी, जमात खत्म भी हो गई, आखिर वक्त पढ़ने लगे। एक दिन पैगंबर उनकी दुकान के सामने से गुजरे और कहा, खाओ भाई क्या हाल है? कहा, आपने जो 2 दिरहम दिए थे आपके दस्ते मुबारक के, क्या देखिए कितनी बड़ी दुकान है, कितना बड़ा मेरा कारोबार है। तो नबी मुस्कुराए, कहा ऐसा करो, अब तो तुमको मेरे 2 दिरहमों की जरूरत नहीं है, वो मुझे वापस करो। वो क्या कितने का ये हाजिर कर दूंगा? नहीं, जितने नहीं चाहिए, जो मेरे 2 थे वो दे दी। तो उसके बाद से डाउन होना शुरू हुई, कारोबार घटता गया, कारोबार घटता गया, घटता गया, घटता गया, यहां तक कि दुकान खत्म हो गई, मस्जिद में आ गई। तवज्जो के साथ सुनिए, बंदे मोमिन पहचानिए कैसा होता। जब मस्जिद में आ गए तो नबी ने पूछा, क्या हाल है? कहा, अल्लाह के नबी, आप मेरा हाल मुझसे बेहतर जानते हैं। जो कारोबार बढ़ा था वो भी आपने देखा था, और जो घटा है वो भी आपने देखा। असमें बात क्या है, कभी भी बिल्डिंग ऊपर से नहीं गिरती है, गिराई जाने वाली बात तो अलग है, लेकिन बिल्डिंग तभी गिरती है जब फाउंडेशन पहले खराब हो जाता है। तो असमें उनके सारे कारोबार का फाउंडेशन वो नबी के 2 दिरहम थे। नबी ने जो फाउंडेशन निकाल लिया तो खुद ही बिल्डिंग बैठ गई, बरकत खत्म हो गई। और मैं यही पर आपके सामने एक लफ्ज़ कहना चाहता हूं, और अक्सर बेशतर मैं अपने भाइयों और अपनी बहनों और बच्चों को ये बात समझाता हूं कि ज्यादा रोजी कोई चीज नहीं है, असल में बरकत सबसे बड़ी चीज। मैं 5,000 रुपए कमाता हूँ, मैं 15,000 रुपए हर महीने में कमाता हूँ, लेकिन मेरे घर का हर आदमी बीमार है, हर आदमी शौकीन है, हर आदमी नई चीज को चाहता है। तो नतीजा क्या है कि सारा महीना कष्ट में गुजरता है कि 15,000 की आमदनी है, 25,000 का प्रोग्राम है, तो कैसे पूरा हो? दिन पर टेंशन ही टेंशन रहता है, परेशानी ही परेशानी रहती है। ये बिल चुकता किया, वो दूसरा बिल आ गया, इससे निपटे थे वो तीसरा आ गया। लेकिन एक आदमी है जो 1,000 रुपए कमाता है, मगर घर में कोई बीमार भी नहीं है, घर में किसी को शौक भी नहीं है, जिंदगी की जरूरतें चाहिए, सब चैन से रहते हैं, चैन से सोते हैं, चैन से उठते हैं। तो अजीजों, बड़ी रोजी में कोई बात नहीं है, बरकत है। रोजी मिल सकती है, बरकत खुदा ही देता है। अमाल तो इस वाक़े का आखिरी हिस्सा का मैं बयान करूंगा तो बात रह जाएगी कि मोमिन और मुत्तकी इंसान होता कैसा है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मेरे सूरत हाल से मुझसे बेहतर बाखबर है, कैसे बढ़ा था कारोबार, कैसे घटा कारोबार। तो एक मरतबा नबी मुस्कुराए कि अगर तुम पसंद करो, तवज्जो चाहता हूं, अगर तुम पसंद करो तो मैं फिर तुमको पैसे दे दूं। अब तो तजुर्बा सामने मौजूद है ना, मैं आपसे तो नहीं कहता हूं, लेकिन अपने लिए जरूर कहता हूं कि अगर कहीं मेरे सामने पर पैगंबर ने ये बात कही होती तो मैं दोनों हाथ पैर से नहीं, दोनों हाथों से नहीं, चारों हाथ पैर से खड़ा हो जाता कि नहीं हुजूर, 2 के बजाय 1 ही दे दी, आधा ही दे दी। इसलिए हमको तो पता लग गया था ना कि बढ़ने का राज क्या है। लेकिन मोमिन किसे कहते हैं, मुत्तकी किसे कहते हैं? जो खाली दुनिया की सरहद तक देखता है वो मोमिन नहीं है, जो दुनिया और आखिरत को मिला के देखता है वो मोमिन है। उन्होंने कहा कि हुजूर, मैंने दोनों मजे चख लिए हैं, मुझे वो दुनिया नहीं चाहिए जो दीन से अलग कर। मिलती हुई दुनिया को दीन के लिए कबूल न करना ये शान मोमिन है। मैं आपकी खिदमत में आज के बयान को यहीं पर रोकना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने बंदे मोमिन से जो मोहब्बत करता है उसमें सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि वो इंसान के लिए, मोमिन के लिए फिक्रमंद रहता है कि वो होना चाहिए इसके लिए जो खुशीद है। तो बस याद रखिएगा, अगर वो देखता है कि इसको पैसे मिलेंगे और ये कार्य खैर करेगा तो मोमिन को पैसे दे देता है, और जब ये देखता है कि ये पैसे इसमें फिरौनियत पैदा कर रहे हैं तो वापस ले लेता है। जब देखता है इसमें इसके जिसमें कुव्वत आती है ये इबादत करता है, जब ये देखता है कि ये कुव्वत से दूसरों को धमकाने लगा है तो बीमार डाल देता है। तो बस याद रखिएगा, एक फतरा सुनाता हूँ और उसके बाद एक हदीस सुनाऊंगा और आज के बयान को रोक दूंगा। फतरा ये सुनाता हूँ कि चूंकि वो मोमिन की भलाई की फिक्र में है, ज्यादा अगर देखता है दौलत में भलाई है तो दौलत देता है, गुर्बत में भलाई है गुर्बत
देता है। बीमारी में भलाई है, बीमारी देता है। सेहत में भलाई है, सेहत देता है। औलाद में भलाई है, औलाद देता है। नहीं है भलाई, दी हुई औलाद वापस ले लेता है। तो जो बंदे मोमिन को वो देता है, जो बंदे मोमिन को देता है, वो उसकी भलाई को देख के देता है। और उसके बाद हमारी जाने निसार हो जाए उन मौला इमामों पर, उन 14 मासूमों पर, जिन्होंने हमारी रहबरी के लिए कोई चीज ऐसी नहीं है जो बयान न करती हो और हमारे सोचने के लिए छोड़ती हो। फरमाया मासूम ने, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि शायद ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, लेकिन भारत चूंकि मुझे नाम याद नहीं है, ज्यादा मैं किसी का नाम लेकर नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये हदीस पढ़ी है। उसमें मासूम ने इरशाद फरमाया कि किसी मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं होता है। बेहद तवज्जो चाहता, मेरे दिल को इस हदीस ने बड़ी रोशनी बख्शी है। उम्मीद है कि आपको इंशाअल्लाह वही रोशनी हासिल होगी। मासूम ने कहा किसी मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं होता है जब तक उसके अंदर दो ख्याल न पैदा हो जाए। ये 1000 बातों में से एक बात सुना रहा हूँ। कितना मासूमीन हमें देखे गए हैं जिसको हमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, उससे फायदा उठाया नहीं। कहा किसी मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं होता है जब तक उसका ये मिजाज न बन जाए, जब तक उसका ये मिजाज न बन जाए, उसके मिजाज में ये दो बातें न पैदा हो जाए कि जब उसे नेमत मिले, नेमत दौलत ही नहीं है, जो चीज की दुनिया में नेमत है उसके लिए मासूम ने फरमाया कि बंदे मोमिन को जब नेमत मिले तो वो ये समझे कि ये नेमत नहीं मिली है, इस नेमत के जरिए वो मेरा इम्तिहान करना चाहता है। और उसके बाद फरमाया कि किसी बंदे मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं होगा। पहला फकरा याद रखिएगा कि जब मोमिन नेमत पाए तो उस नेमत के बारे में समझे कि ये हमारे इम्तिहान का जरिया है, तो हमें इम्तिहान पास करना है, फेल नहीं होना है। और उसके बाद मासूम ने दूसरा फकरा फरमाया कि मोमिन का ईमान तब कामिल होगा जब वो मुसीबत को नेमत समझे। इसलिए कि जब अल्लाह बंदे मोमिन की भलाई की फिक्र में है तो वो मुसीबत नहीं देगा, बल्कि क्या होगा, हम किसी बुरे रास्ते पर जा रहे हैं जिससे नहीं रुक सकते हैं जब तक कि वो मुसीबत हमको न दी जाए। लिहाजा उसने मुसीबत में डाल के हमको किसी बुराई से रोका है। इसको मेरे बच्चे यूं याद रखें कि जैसे डॉक्टर कभी आदमी का खाना बंद कर देता है तो ये खाना नहीं बंद करता है, ये फाका होता है उसकी जिंदगी के बुझते हुए चिराग को दोबारा रोशन करना। तो अगर एक डॉक्टर जिंदगी बचाने के लिए फाका दे सकता है तो एक खुदा इंसान के तक़वे और ईमान और किरदार को बचाने के लिए कोई मुसीबत भी दे सकता है। तो मासूम के इस फिक्रे को मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, मेरे भाई याद रखेंगे कि फरमाया मोमिन का ईमान कामिल नहीं होगा, मोमिन का ईमान कामिल नहीं होगा जब तक वो हर नेमत को इम्तिहान न समझ ले और हर मुसीबत को नेमत न समझ ले। और उसके बाद मैं आपकी खिदमत में करबला वालों का तज़किरा करूंगा, ये कहते हुए तज़किरा करूंगा कि करबला वालों ने मुसीबतों पर सब्र नहीं किया है बल्कि मुसीबतों पर शुक्र किया है। मैंने यही किसी मजलिस में आपके सामने पढ़ा था कि जब जनाब हुर का बेटा शहीद हुआ है तो जनाब हुर का चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे किसी इंसान को बहुत बड़ी खुशी हासिल होती है और उसका चेहरा खुशी में तमतमा उठता है। ऐसे ही बेटी की शहादत की खबर पाने के बाद हुर का चेहरा खुशी से तमतमा उठा था। क्यों? इसलिए कि हुर उस मंजिल पर आ गए थे जहां नेमत को इम्तिहान समझ रहे थे और मुसीबत को नेमत समझ रहे थे। कामिलुल ईमान हो गए थे हुसैन के पास आने के बाद। मैं आपकी खिदमत में आज इस तस्करे को पेश करना चाहता हूँ कि हुर का चेहरा उस वक्त तमा उठा था खुशी से जब उनका बेटा शहीद हुआ था। लेकिन हुर के बेटे की शहादत में सारी तफसीलों के साथ हमको और आपको ये मिलेगा कि हुर के बेटे की लाश हुर को नहीं उठाना पड़ी है बल्कि हुसैन उठा लाए हैं। हुसैन अपने असहाब व इज़्ज़ा के साथ जाके उठा लाए हैं। मैं आज की रात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो वक्त कितना सख्त था जब अकबर थे और हुसैन। बेटे का रुखसत होना, बेटे का मैदान जिहाद में जाना, लड़ने के बाद दोबारा वापस आना, फिर रुखसत होना, फिर शहीद होना। शहीद होने से पहले हुसैन को पुकारना और हुसैन का जाके मैयत लाना, ये पूरी
तफसील है जनाब अकबर की शहादत से वाबस्ता, सारी तफसीलें तो नहीं सुना सकूंगा, लेकिन मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब वो रातें बहुत कम रह गई हैं, वो रातें बहुत कम रह गई हैं, वो दिन बहुत कम रह गए हैं जिनको हम अशरे मुहर्रम कहते हैं। हम अज़ादारी नहीं कर सके, हम मातमदारी नहीं कर सके, हम गम नहीं कर सके, न हम मसाइब सुन सके, न हम मसाइब सुना सके, न हम रो सके, न हम रुला सके। लिहाजा मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जो थोड़ा बहुत वक्त बाकी है इसमें आइए हम अपने दूसरे कामों को रोक करके इस गम के हक को अदा करने की कोशिश करें। मैं आपकी खिदमत में तज़किरा करना चाहता हूँ कि बड़ा सख्त वक्त था, बड़ा सख्त वक्त था जब जनाब अली अकबर इमाम की खिदमत में आए कि बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। और हुसैन ने कहा बेटा मैं इजाजत बाद में दूंगा, पहले उस फुटी से जाके इजाजत लो जिसने तुमको 18 साल पाल के जवान किया है। और रवायतों का फिक्रा है, आप रोज जाकिरीन से सुनते रहते हैं कि जब शहजादा खेमे में आया है शहजादी से रुखसत होने के लिए, बीवियों से रुखसत होने के लिए, तो आलम यह था कि कभी अकबर निकलना चाहते थे और खेमे का पर्दा उठाते थे, और कभी सारी बीवियां अकबर के दवा के दामन को पकड़ लेती थीं और अकबर रुक जाते थे और खेमे का पर्दा गिर जाता था। मेरे पास तफसीलात भी हैं मगर उनके बयान करने का मौका नहीं है, मगर फिर भी इतना जरूर सुनाना चाहूंगा कि जनाब ज़ैनब सबसे ज्यादा सामने आकर रोकती थी, बेटा मैंने अपनी औलाद को ऐसे नहीं पाला है जैसे तुमको पाला है। मैं किस दिल से रुखसत कर दूं कि अगर तुम करबला के मैदान में जाओ और शहीद होने के लिए जाओ, लेकिन मेरा तसव्वुर मुझसे ये कहता है कि ज़ैनब जैसे भी रोकती होंगी, लेकिन एक छोटी बहन प्यासी बहन जिसके लिए उठ के खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था, वो शायद आई होगी और आके अकबर के घुटनों से लिपट गई होगी। भैया मैं तुम्हें न जाने दूंगी, थोड़ी देर पहले मेरा चचा गया, उसका भी खाली अलम आया, उसका भी जनाजा नहीं आया, मैं तुम्हें न जाने दूंगा। तो मेरा तसव्वुर मुझसे ये कहता है जनाब ज़ैनब से रुखसत हो जाना आसान है, जनाब रबाब से रुखसत हो जाना आसान है, दूसरी बीवियों से रुखसत हो जाना आसान है, लेकिन सकीना से रुखसत होना बहुत दुश्वार है, बड़ा मुश्किल काम है जो अली अकबर को अंजाम देना पड़ा होगा। यकीनन बहन आके भाई के घुटनों से लिपट गई होगी और भाई ने उठा के सीने से लगा के कलेजे से लगा के बहन को तसल्ली दी होगी। अब कौन है जो तसव्वुर पेश कर सके, जो लफ्ज़े ला सके, जो सोच के बता सके क्या समझाया होगा अकबर ने जब सकीना उतरने से गोद पर तैयार हो गई होगी। लेकिन इतना हुआ, बहरहाल हुआ, जैसे भी हुआ कि जनाब अली अकबर रवाना हुए। और कैसे रवाना हुए, फिक्रा किताबों का ये है कि जब अकबर खेमे से निकले हैं तो सारी बीवियां और सारे बच्चे इस तरह से बेतहाशा रो रहे थे जैसे किसी बड़े घर से कोई जनाजा निकलता है और घर वाले पर बिलक के तड़प के बेचैन होकर रोते हैं। हुसैन के पास आए, हुसैन से रुखसत हुए, घोड़े पर बैठे और कहा बाबा मेरा आप सलाम कबूल करें, मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ। हुसैन ने कहा बेटा जाओ, रवायतें आपकी सुनी हुई हैं, मैं सिर्फ याददाश्त को ताज़ा करना चाहता हूँ ताकि गम मातम का हक अदा हो जाए। क्या हुआ, चलते हुए अकबर को महसूस ये हुआ कि कोई पीछे आ रहा था और आने वाला गिर पड़ा है। जो घोड़े की लगाम रोक के नौजवान ने पलट के देखा तो आने वाला कोई और न था, हुसैन थे जो पीछे आ रहे थे और जो आके जमीन पर गिर पड़े थे। कहा बाबा, घोड़े से उतर पड़े, हाथों को जोड़ा, कहा बाबा मैं तो आपसे रुखसत हो गया था, फिर आप मेरे पीछे क्यों आए? बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, फिर आप मेरे पीछे क्यों आए? बाबा मेरी इल्तिजा है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है, मेरी गुजारिश है, आप खेमे में वापस जाएं। तो कहा अच्छा अकबर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मगर तुम भी एक मेरी बात मान लो, जहाँ तक सामना रहे वहाँ तक मुड़ के तो मुझे अपने को दिखाते जाना। अकबर बढ़ते भी हैं और मुड़ के बाप की तरफ देख भी लेते हैं, अकबर बढ़ते भी हैं मुड़ के बाप की तरफ देख भी लेते हैं। और उसके बाद वो वक्त भी आया कि अकबर मैदान में पहुंचे और फौजों के दरमियान जिहाद शुरू किया, लड़ाई शुरू की और हुसैन की निगाहों से ओझल हो गए। इमामत की निगाहों से ओझल नहीं हो सकते थे, लेकिन थोड़ी देर में खेमे में खबर फैली अकबर वापस आए हैं। बस इस जगह को जब मैं सोचता हूँ तो दिल बहुत बेचैन होता है। खेमों में खबर फैली अकबर वापस आए हैं, मैदान जाके कोई वापस नहीं आया था अब तक। अकबर वापस आए, सभी खुश हो गए, मगर अकबर बाप के पास आए और आने के बाद कहा बाबा करबला के मैदान से आ रहा हूँ,
लड़ के आ रहा हूँ, जख्मी होकर के आ रहा हूँ, धूप भी है, जख्म भी है और खून बहता हुआ खून भी है, हथियार भी गर्म हो गए हैं। ए बाबा प्यास बहुत बढ़ गई है, प्यास बहुत बढ़ गई है। ए बाबा अगर एक घूंट पानी मुझे मिल जाता तो मैं अपने जिगर को ठंडा कर लेता। मैं सत्य हो जाऊं मेरे शहजादे। आप जानते हैं कि खेमे में पानी नहीं है, आप पानी क्यों मांग रहे हैं? बाप के दिल पर बोझ हो जाएगा सवाल, लेकिन ठहरिए, वाक़े को आगे बढ़ने दीजिए तो अकबर के सवाल ये आपका पानी मांगने का मकसद शायद वाज़ेह हो जाए। हुसैन करीब आए और कहा बेटा अकबर तुम जानते हो पानी खेमों में नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई असगर आंखें बंद किए हुए पड़ा है, उसकी माँ का दूध भी खुश्क हो चुका है, पानी कहाँ से लाऊं? हाँ एक काम करो, मेरी जबान अपने मुंह में ले लो, उसे चूसो, शायद मेरी जबान में कोई सरी हो, तुमको सुकून मिल जाए। अकबर ने मुंह बढ़ा दिया, हुसैन ने अपनी जबान अकबर के मुंह में दे दी, मगर मुंह में जबान का कहना था कि अकबर ने चेहरा हटा के कहा बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश है। अकबर यही बताने आए थे, मैं जवान हूँ, मैं लड़के पलटा हूँ, मैं जख्मी होकर पलटा हूँ, मेरा खून बह रहा है। सारी दुनिया जानती है जवान को प्यास ज्यादा होती है, लड़ने वाले की प्यास ज्यादा होती है, जख्मी की प्यास ज्यादा होती है, जिसका खून बह जाता है उसकी प्यास ज्यादा होती है। लेकिन मैं दुनिया को बताने आया हूँ इस हाल में भी अकबर उतना प्यासा नहीं है जितना हुसैन प्यासे हैं। तो जरा सोचना, जब मेरी लाश उठाएंगे तब कितने प्यासे होंगे, जब अकबर को ले जाएंगे तब कितने प्यासे होंगे, जब मैदान जिहाद में जाएंगे तब कितने प्यासे होंगे, जब घोड़े से गिरेंगे तब कितने प्यासे होंगे। और सोच लेना जब मेरा बाप जबा किया जा रहा होगा तो मेरा बाप कितना प्यासा होगा। एक मरतबा हुसैन ने एक अंगूठी दी, चांदी की अंगूठी दी और कहा बेटा इसे मुंह में रख लो, शायद कुछ तस्कीन हो जाए, और जाओ बेटा, खुदा हाफिज और नासिर, थोड़ी देर में तुम्हारे जद रसूलुल्लाह जामे कौसर से तुमको सैराब करते हैं। जाओ बेटा, खबर फैली अकबर दोबारा जा रहे हैं, अब अकबर नहीं जा रहे थे, सीनों से दिल बाहर निकले आ रहे थे, अकबर नहीं जा रहे थे, सीनों से दिल बाहर निकले आ रहे थे। बीवियों ने खुदा हाफिज कहा, बहनों ने खुदा हाफिज कहा, बच्चों ने खुदा हाफिज कहा, यतीमों ने खुदा हाफिज कहा, बेगाओं ने पर्दे से खुदा हाफिज कहा, और हुसैन ने आखिर में आके हुसैन अकबर को खुदा हाफिज कहा। अकबर मैदान में गए, लड़े और लड़ते लड़ते जब एक जालिम ने अकबर के कलेजे का निशान लेकर नेजा मारा, बस कैसा नेजा मारा, इसे यूं सुन लीजिए, नेजा उतरता चला गया, कलेजे तक उतर गया। जब अकबर के कलेजे तक उतर गया तो कातिल ने नेजे को वापस निकालना चाहा, बस नेजे से और अकबर के कलेजे से एक लड़ाई होती रही, और कैसी लड़ाई हुई, नेजा टूट के निकला, फल नहीं निकल सका, फल अकबर के कलेजे में रह गया। किसके पास सोचने की ताकत है जो बताए कि जितनी देर कलेजे और नेजे में लड़ाई हो रही थी कितना अकबर ने सब्र किया होगा, किस मुसीबत पर सब्र किया होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी, जिसको बर्दाश्त किया होगा। लेकिन जैसे ही टूट के नेजा निकला, अकबर ने महसूस कर लिया अब मैं घोड़े पर समझ नहीं सकता हूँ, और अकबर को याद आ गया जब चचा ने पुकारा था तो मैं बाजू पकड़ के चचा के पुराने बाबा को ले गया था। अब तो बाबा के पास कोई नहीं है, दादा घोड़े के गर्दन पर झुक गए, घोड़े के गर्दन में दोनों हाथ डाल दिए, घोड़े को मोड़ दिया, मेरे घोड़े मुझे खेमे तक पहुंचा दे ताकि मेरे बाप को ना पड़े, मेरे बाप को आने की जहमत गवारा करना पड़े। ये जालिमों जाने दो अकबर को, अकबर अपने बाप तक जाना चाहते हैं मरने से पहले, लेकिन मकातिल की किताबों का फकरा यह है जिधर से गुजरते थे तलवारें मारते थे, यहाँ तक कि जिसमें अकबर टुकड़े टुकड़े हो गया, हाथ छूटे, अकबर जमीन पर गिरे, वफादार घोड़ा खड़ा हो गया। अकबर ने आवाज दी, बुलाया नहीं बाबा को कि बाबा आइए खबर लेने के लिए, बल्कि आवाज दी बाबा आखिरी मेरा सलाम कबूल कर लीजिए, हुसैन चले, बार बार कहते हुए चले, यानी अकबर को आवाज दे रहे हैं, बेटा तुम्हारा बाप आ रहा है, मतलब इसकी आगे में न पढ़ सकूंगा। हुसैन पहुंचे, वहां पर पहुंचे जहाँ जमीन खून से लाल हो गई थी। अकबर को देखा, अकबर के सीने को देखा, सीने के जख्म को देखा, कलेजे को देखा, कलेजे में नेजे हुए टूटे फल को देखा, नेजे के टूटे हुए फल को देखा, बैठ गया है दरे कर्रार का फाते खैबर का बेटा, और एक मरतबा कहा अकबर ने आंखें खोल दी, बाबा आ गए, बाबा आ गए, कहा बेटा मैं आ गया। बस शायद अकबर ने हाथ अपने सीने पर रखा, हुसैन ने कहा क्या बात है बेटा, कहा कलेजे में नेजे का फल फंसा हुआ है। हुसैन ने बड़ा सख्त इम्तिहान दिया, एक मरतबा नेजे का फल पकड़ा और फल को
कलेजे से निकाल लिया। हल्का निकलना था, खून का फव्वारा उबला, खून के फव्वारे का उबलना था। अकबर ने दोनों हाथ उठा दिए, बाबा आइए मुझे खुदा हाफिज कहिए, मैं अब जा रहा हूँ। हुसैन अपने लाल पर झुके और झुकने के बाद लिपट गए हुसैन। अकबर दुनिया से गुजर गए। अब मरहला ये है कि हुसैन लाश उठाए तो कैसे उठाए। जवान की लाश उठा लेना हुसैन के लिए मुश्किल न था। बस आखिरी फिक्रा मेरी बहनों सुनो, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों सुनो, आखिरी फिक्रा ये है कि अकबर की लाश उठा लेना हुसैन के लिए कुछ मुश्किल न था, लेकिन उस लाश को कैसे उठाएं जो टुकड़े टुकड़े हो गई है, जो टुकड़े टुकड़े हो गई है। कई मरतबा लाश अकबर हुसैन ने उठाई और आखिर में चाहा कि घोड़े के ज़ीन पर लाश रख दे और सहारे सहारे ले चले, मगर जब टुकड़े टुकड़े अकबर की लाश न उठ सकी तो जमीन पर नौजवान की लाश लेटा दी और टूटी कमर पकड़ के खेमे का रुख करके आवाज दी, बनी हाशिम के बच्चों आओ, अपने भाई अकबर की लाश उठाने में मेरी मदद के लिए आओ। जो बच्चे आ सकते थे वो आए, सहारा दे करके हुसैन लाश लेके चले। जैसे खेमे के सामने पहुंचे वैसे खेमे का पर्दा उलट के हमारी आपकी शहजादी ज़ैनब निकली। ए बेटा अकबर 18 साल पाला था, आज तुम्हें खून में डूबा हुआ 18 साल पाला था, आज तुम्हें खून में डूबा हुआ पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का कि हमको मोमिन बनने की तौफीक दे, मोमिन के बाद मुत्तकी बनने की तौफीक